તમારી આવતીકાલની ઉજવણની ગેરંટી લઈને અમે આવીએ છીએ. અને એટલું જ નહીં, મારા નાના ખેડૂતો આખા દેશમાં જે મોટું અનાજ પકવે છે, જુવાર બાજરો જેવી અનાજ પકવે છે, આપણે આખી દુનિયામાં 2023 મિલેટ યર ઉજવવા માટેનું યુએન નેશનને વિનંતી કરી હતી, યુનાઇટેડ નેશન્સને. અને 2023નું વર્ષ આખી દુનિયા મિલેટ વર્ષ બનાવવાની છે. મિલેટ એટલે આપણા જાડું અનાજ, જુવાર ને બાજરો ને એવું બધું. આખી દુનિયા, તમે વિચાર કરો, આખી દુનિયામાં જવાર બાજરાની આવી જે રાગી ને આ બધું જે છે ને, એનું મોટું બજાર ઊભું થવાનું છે. અને એનો લાભ આખા ભારતના નાના નાના ખેડૂતોને મળવાનો છે. મારા અરવલ્લીના નાના ખેડૂતોને મળવાનો છે, મારા ઉત્તર ગુજરાતના નાના ખેડૂતોને મળવાનો છે. ભાઈઓ બહેનો, ગામડાનો વિકાસ, આજે બધા રિપોર્ટ કહે છે કે ભારતની અંદર ગામડામાં ગરીબી તે જ રીતે ઘટી રહી છે, કારણ વિકાસના ફળ હવે ગામડા સુધી લઈ જવાનું કામ ચાલ્યું છે. ભાઈઓ બહેનો, વિકાસ કરવો હોય ને તો જેમ પાણીનું મહત્વ છે ને, એ જ રીતે વીજળીનું મહત્વ છે. અને અંધારા જ્યાં સુધી દૂર ના થાય, વીજળી ના આવે તો ભાઈઓ બહેનો ત્યારે પ્રગતિ શક્ય ન બને. દુનિયા બદલાઈ ગઈ છે. આજે તમે મોબાઈલ વગર તમારામાંથી એકય બેઠો નહીં હોય, વીજળી ન હોય તો ચાર્જ ક્યાં કરાવવા જશો તમે? કોના ખિસ્સામાં મોબાઈલ આવે? પણ આ વીજળી કોકે નાખીએ છે, મહેનત કરીએ છીએ ને. આપણા ગુજરાતમાં વીજળીના ઉત્પાદનમાં આપણે એટલા બધા ગયા, એટલા બધા નવા વીજળીના કારખાના ઉભા કર્યા. આજે વીજળીમાં ગુજરાત સરપ્લસ થઈ ગયું છે. સરપ્લસ, આજે ગુજરાત જરૂરત કરતા વધારે વીજળી ઉત્પાદન કરતું થઈ ગયું છે. અને વીજળી આવી, આ કોરોના કાળમાં મોબાઈલ ફોન હતા, વીજળી હતી, તો ગામડામાં ઘરે બેસીને પણ બાળક મોબાઈલ ફોન પર ભણી શક્યું. આ કામ આપણે કર્યું છે. અને હવે તો 5G લાવવાના છીએ. 5G આવશે, લાગી નવી ક્રાંતિ આવવાની છે. ભાઈઓ બહેનો, આ પરિવર્તન ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો દ્વારા ઈમાનદારીપૂર્વક કરેલા કામોને કારણે થયું છે. આજે ગુજરાતમાં વીજળી પેદા કરવાની ક્ષમતા પહેલા કરતા 5 ગણી વધારે છે. આજે ગુજરાતમાં વિન્ડ એનર્જી, પવનચક્કી 5 ગણી કરતા વધારે વીજળી આપણે પેદા કરીએ છીએ. આજે ગુજરાતમાં સોલર પાવર, આપણે સોલર પાવરનો એક પ્રોજેક્ટ અહીંયા શરૂ કર્યો, તમને બધા પડોશમાં જ ખબર છે. આજે 10 ગણી વીજળી સૂર્ય શક્તિથી પેદા કરવાનું કામ આજે આપણે કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, ઘેર ઘેર સોલાર રૂફટોપ, એની ચિંતા કરીએ છીએ. અને મારું તો સપનું છે ભાઈઓ, હમણાં તમે મોઢેરાનું વાંચ્યું હશે, મોઢેરાની અંદર આખું ગામ આપણે સૂર્ય શક્તિથી ચાલતું કરી દીધું છે. ઘેર ઘેર ઉપર છત ઉપર સોલાર પેનલો લગાવી છે. એટલે દરેક ઘરમાં પોતાનું જ વીજળીનું કારખાનું બની ગયું. મારે તો ગુજરાતમાં બધે જ આ કરવું છે. એટલે તમે વીજળી તો ઘરમાં મફત આવે જ, પણ વધારાની વીજળી તમે વેચીને કમાઈ કરી શકો, ઘેર બેઠા કમાણી થાય, વીજળીમાંથી કમાણી થાય, એ વાત તો મોદી જ કરી શકે પહેલા, અને એ મારે કરવું છે. હમણાં મેં મોઢેરામાં એક બેન જોડે ફોન પર વાત કરી, હવે આ સૂર્યનગરી કરીને તો હું આવી ગયો, પણ પછી શું અનુભવ છે? તો એમણે કહ્યું, સાહેબ અમે તો હવે ઘરમાં એસી લાવવાનું નક્કી કર્યું છે, ફ્રીજ લાવવાનું નક્કી કર્યું છે. મેં કેમ? પૈસા તો કે હતા, પણ પેલા ડરતા હતા મેં લાવતા, કારણ વીજળીનું બિલ એટલું બધું આવે તો આ રેફ્રિજરેટર અને આ એર કન્ડિશનર અમને પાલવે નહીં. લાવવાનો ખર્ચો તો પાલવે, પણ રાખવાનો ના પાલવે. પણ હવે આ સોલાર આવી ગયું છે ને, એટલે બધું મફતમાં છે. એટલે હવે તો અમે તો રેફ્રિજરેટર લાવવાના છીએ, એસી લાવવાના છીએ. આ ક્રાંતિ ગુજરાતમાં ઘેર ઘેર આવે, એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. એટલું જ નહીં, અમારા ખેડૂતના જિંદગીમાં પણ મારે બદલ લાવવો છે. એક વખત વીજળીના ભાવ માટે અમારા ઉત્તર ગુજરાતના ખેડૂતો આંદોલનો કરતા, અમારા કચ્છી પટેલો બરાબર આંદોલનનું નેતૃત્વ કરતા મેદાનમાં ઉતરતા. એમાં અમારું મોડાસા જોર મારતું હતું. અને કોંગ્રેસની સરકારો ગોળીઓ દેતી હતી. કોંગ્રેસની સરકારોએ ગોળીઓ દીધી હતી, આપણા અરવલ્લી જિલ્લાના છોકરાઓને મારી નાખ્યા હતા. વીજળીમાં લેવા ગયા હતા અને મારી નાખ્યા હતા. હવે આપણે વીજળીના ક્ષેત્રમાં એક પરિવર્તન લાવી રહ્યા છીએ. અન્નદાતા ઉર્જાદાતા બને. ખેતરના શેડા ઉપર આપણે વાડ કરતા હોઈએ છીએ,
વાડમાં 2 મીટર જમીન આપણી બગડે, 2 મીટર જમીન પડોશીની બગડે, વિના કારણે 4 મીટર જમીન આપણે બગાડી નાખતા હોઈએ. ત્યાં સોલર પેનલ લગાવવાની, તમારી આવશ્યક વીજળી તમારી સોલર પેનલમાંથી વાપરે, તમને વીજળી મફત મળે અને વધારાની વીજળી અમારી સરકાર ખરીદી લે. તમે જેમ અનાજ વેચો છો એમ વીજળી પણ વેચી શકો, એ દિશામાં કામ કરવાનું ચાલી રહ્યું છે. હવે વીજળી સસ્તી કરોનો જમાનો ગયો, હવે અમારી વીજળી તમે ખરીદો ક્યારે એની વાત કરો, એ કામ અમે કરી રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, 20 વર્ષ પહેલા ગુજરાતમાં 55 લાખ આસપાસ વીજળી કનેક્શન હતા. આજે લગભગ 2 કરોડે પહોંચ્યા છે અને સોલાર એનર્જી આવ્યા પછી તો વીજળી જ વીજળી છે. તમે પોતે કારખાનાના માલિક અને તમારી જ વીજળી જેટલી વાપરવી આટલી વાપરો મફત. આ ભગવાન સૂર્ય દેવતા તપી રહ્યા છે, તમારા હાથમાં જે વાપરવું એટલું વાપરો. આ કામ આપણે કરી રહ્યા છીએ. 5 લાખ કરતા વધારે કનેક્શનો આપણે પહોંચાડી દીધા છે. આજે 5 લાખ જે હતા એ 20 લાખે પહોંચ્યા. ભાઈઓ બહેનો, પશુપાલન, આપણી આ ડેરીનો તો પોતાનો એક ચમકારો હવે થવા માંડ્યો છે. પણ વીજળી આવી એના કારણે ચિલિંગ સેન્ટરો ચાલ્યા, મિલ્ક કલેક્શન સેન્ટરો સરખા ચાલ્યા અને એના કારણે પશુપાલનને લાભ થયો. ડેરી સેક્ટરનો સીધો લાભ પશુપાલનમાં થયો. હવે પશુપાલનમાં પણ જે ખેડૂતોને આપણે કેસીસી કાર્ડ આપીએ છીએ, એ હવે કેસીસી કાર્ડ પશુપાલકને પણ આપીએ છીએ. કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ, જેના કારણે બેંકમાંથી ઓછા પૈસે ઓછા વ્યાજે એને પૈસા મળી રહે, દેવાના ડુંગરમાંથી બહાર આવે. આ કામ કરી રહ્યા છીએ. और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं वॉर 24। रूसी टैंक पर यूक्रेनी अटैक लगातार जारी, रशियन TATBV पर हमला किया गया। कीव पर अटैक का बदला, लुहांस्क में रूसी फौज पर हमला कर लिया गया। यूक्रेन का दावा है लुहांस्क में रशियन आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, 50 सैनिकों को मार गिराया गया। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार बढ़ रहा है, घातक मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल हो रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्चर बना रहा है रूस। वॉर जोन में यूक्रेनी प्लेन का एक्शन हुआ, हमला करते दिखे यूक्रेनी फाइटर जेट। रूसी हमले के बीच यूक्रेन भी हमले में पीछे नहीं, रशियन एरियल स्ट्राइक को किया नाकाम। यूक्रेनी सेना जमीन से आसमान तक रूस पर कर रही है काउंटर अटैक, बर्फबारी के बीच भी यूक्रेनी फौजियों का एक्शन जारी। ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, 6 शिप ब्लैक सी में तैनात। रूस की सेना ने विलांस्क और जफरीजिया में किया हमला, जिसके मैटरनिटी वार्ड में नुकसान पहुंचाया गया, नवजात बच्चे की मौत की खबर। जंग के बीच कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी CSTO समिट में पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आर्मेनिया के PM के साथ दिखे। रूस यूक्रेन जंग को लेकर यूरोपियन संसद ने भी दिखाया सख्त रुख, आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया रूस को। बेलारूस में रूसी सैनिकों को दी जा रही है कड़ी ट्रेनिंग, मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का हो रहा है इस्तेमाल। यूक्रेन के Su-25 एयरक्राफ्ट की तस्वीरें सामने आई, ऑपरेशन के बाद बेस पर लौटते दिखे विमान। यूक्रेनी सैनिकों के हमले की तस्वीरें सामने आई, रूस के बख्तरबंद वाहनों को बनाया गया निशान। ठंड के मौसम में बढ़ सकती है रूसी सैनिकों की मुश्किल, यूक्रेन के सैनिकों के लगातार जज्बे बरकरार। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस बॉर्डर पर लहराया राष्ट्रीय ध्वज। रूस के पास ईरानी ड्रोन का स्टॉक होने वाला है खत्म, ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का दावा। यूक्रेन की राजधानी कीव को हर हाल में बचाने के लिए यूक्रेनी सैनिकों ने कसी कमर, चारों ओर डिफेंसिव लाइन बनाने का काम जारी। डोनेट्स्क के FU में रूसी ठिकानों पर की जबरदस्त बमबारी, रूसी सैन्य अड्डे हुए तहस नहस। जल्द हो सकती है जेलेंस्की की छुट्टी, कुर्सी पर मंडराया खतरा, राष्ट्रपति पद से हटाए जा सकते हैं जेलेंस्की, फैसलों से अमेरिका और पश्चिमी देश नाखुश। जेलेंस्की की जगह दूसरे नामों पर विचार, वोल्ड्रिज लुशनी का नाम सबसे आगे। ठंड और बर्फबारी के बीच यूक्रेनी टैंक ने किया जोरदार धमाका, बर्फ के टुकड़े आसमान में उड़ते हुए दिखाई दिए। रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग, दोनों पक्षों की ओर से लगातार हो रहे हैं हमले। यूक्रेन की ओर से किए गए ड्रोन हमले में ब्लैक सी के रास्ते से वस्तुपोल के पावर प्लांट को उड़ाने की कोशिश की गई।
यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले का जवाब, जिसमें रूसी एयर डिफेंस ने 2 ड्रोन मार गिराए, तो जवाबी कार्रवाई को दिखते हुए यूक्रेन के 3 ड्रोन ब्लैक सी से ही होकर वापस लौटे। और यहां रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आईटी की छापेमारी और कई प्रॉपर्टी डीलर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और 36 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग ने छापे मारे हैं। आपको बता दें 6 जगहें दिल्ली में जहां पर आईटी की छापेमारी हुई है। तो दिल्ली में 6 जगहें और इसके साथ यूपी, उत्तराखंड में भी आईटी की छापेमारी जारी है। कई प्रॉपर्टी डीलर्स के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं और 36 से ज्यादा जगहों पर विभाग की यह कार्रवाई जारी। तो लगातार आईटी एक्टिव नजर आ रहा है और कई प्रॉपर्टी डीलर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं तमाम उन जगहों की। 36 जगहें हैं, 36 से ज्यादा जहां पर यह छापेमारी हुई है। और दिल्ली में ही बात करें तो 6 जगहों पर आईटी ने छापा मारा है। देहरादून और लुधियाना की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां यह दबिश हुई है। तो 86 से ज्यादा इन जगहों पर छापेमारी की गई है। लुधियाना में भी आईटी डिपार्टमेंट लगातार एक्टिव है और उत्तराखंड में भी लगातार यही तस्वीर और यही विभाग की कार्रवाई देखी जा रही है। और दिल्ली एम्स का सर्वर अभी तक डाउन है। कल सुबह 7 बजे से डाउन है यह सर्वर। एम्स का सर्वर डाउन, आईटी मंत्रालय कर रहा है साइबर हमले की निगरानी। बैकअप सर्वर से फाइलों को बहाल करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल एम्स का काम मैनुअल मोड पर चल रहा है। इतना बड़ा संस्थान और मैनुअल मोड पर यह पूरा काम, वो भी आज के मशीनी युग में, फिलहाल खतरा भी बना हुआ है। और अब रुक करेंगे भारत सुपरफास्ट का। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। रोहिणी की एफएसएल लैब में हो रहा है टेस्ट और कल बुखार की वजह से टेस्ट नहीं हो सका था। पॉलीग्राफ में आफताब से होंगे 60 सवाल। 3 सेक्शंस में किए जाएंगे सवाल। हर सेक्शन में होंगे 20-20 सवाल। मंगलवार को पूछे गए थे 30 सवाल। श्रद्धा हत्याकांड में हैरतअंगेज खुलासा। आफताब के घर से मिली नोटबुक और नक्शा। लाश के टुकड़ों का हिसाब रख रहा था। लाश के टुकड़ों को कहां फेंकना है यह भी लिखता था आफताब। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिला संदिग्ध पैकेट। विजयपुरा में ड्रोन से गिरा यह पैकेट, जिसमें 2 पिस्तौल, 4 लोडेड मैगजीन, आईडी, घड़ी, बैटरी और कैश बरामद किया गया। सांबा में सुरक्षा बलों को 5 जगहों पर मिले संदिग्ध पैकेट और इन पैकेट्स की जांच जारी। सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी सफलता मिली। भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक जब्त किए गए। बारूदी सुरंग बनाने वाले सामान भी बरामद। गुजरात मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालनपुर में जनसभा को संबोधित किया। जनता से बीजेपी को वोट करने की अपील की। बनासकांठा में प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात में पर्यटन उद्योग तेजी से फल फूल रहा है और क्षेत्र की विकास की संभावनाएं तेज। प्रधानमंत्री ने लाचित दिवस की बधाई दी और यहां बोर्ड फूकन की 400वीं जयंती पर भी बधाई देते नजर आए। गोवा में रोजगार मेले को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और उनके परिवार को बधाई दी। पीएम ने कहा, बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से मोपा में बने हवाई अड्डे का जल्द होगा लोकार्पण। बुंदेलखंड को सीएम योगी की बड़ी सौगात। झांसी में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बुंदेलखंड नई ऊंचाइयों को छू रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, 2024 में फिर आएगी बीजेपी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज का दौरा करेंगे और इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी। गुजरात के गोधरा में ओवैसी की जनसभा। ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की निंदा की। असम सीमा पर हिंसा को लेकर मेघालय सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज अमित शाह से कर सकता है मुलाकात। सीबीआई जांच की मांग होगी। बजट की तैयारियां तेज। सेवा क्षेत्र और व्यापार संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राहुल गांधी आज टंचम्मा मामा की जन्मस्थली पर आदिवासियों को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। अपने पति और बेटे के साथ आज और 25 नवंबर को राहुल गांधी के साथ चलेंगी प्रियंका गांधी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का बयान, राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, पद यात्रा से कोई असर नहीं होगा। गुजरात में बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी।
मीडिया में सीसीटीवी फुटेज का प्रसारण रोकने को लेकर सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज से सुनवाई। यहां राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की है अर्जी। बीजेपी ने फिर साधा आम आदमी पार्टी पर निशाना। सत्येंद्र जैन के जेल वाले वीडियो पर तेजेंद्र बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, जेल में खाने को लेकर हालात ये हैं कि अब सब कुछ परोसा जा रहा है। जगदानंद की जगह अब्दुल बारी सिद्दीकी बनेंगे आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष। आज हो सकती है घोषणा। रूसी फौज की एमएलआरएस ट्रेनिंग का विध्वंसक वीडियो सामने आया। बेलारूस के ट्रेनिंग ग्राउंड पर भीषण बारूदी बौछार हुआ। ऋचा चड्ढा ने किया सेना का अपमान। विवादित ट्वीट कर लिखा, गलवान कहता है हाय, बीजेपी ने इसे बताया शर्मनाक। ट्रोल होने के बाद अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी। सेना पर किए इस विवादित ट्वीट पर कहा, सेना का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलिन फर्नांडिस पर सुनवाई टली। 12 दिसंबर तक सुनवाई टली। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में आयकर विभाग की दबिश। प्रॉपर्टी डीलर्स के 36 से ज्यादा ठिकानों पर छापा। दिल्ली में 6 जगहों पर आईटी की छापेमारी की खबर। देश में हिजाब विवाद और यूसीसी विवाद के बीच उत्तराखंड के मदरसों में लागू होगा ड्रेस कोड। एनसीईआरटी की किताबें पढ़ेंगे मदरसों के छात्र। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने मांगी माफी। कांग्रेस के नेता पर की थी टिप्पणी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान, कहा हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कों से ही शादी करनी चाहिए। श्रद्धा हत्याकांड पर उन्होंने बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और एआईएडीएमके नेता का बयान, कहा जरूरत पड़ी तो मैं भी राज्यपाल से मिलूंगा। असम के कामरूप जिले में लाचित बर्फकन की 400वीं जयंती। असम में नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सीएम अरविंद केजरीवाल से नाराज दिल्ली के सनातन धर्म मंदिर के पुजारी। सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं का प्रवेश भी वर्जित है। होर्डिंग्स बाकायदा लगाए गए। दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन, हैकिंग की जताई जा रही है आशंका। मरीजों को होना पड़ा परेशान। जयपुर में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, गुजरात में पहले भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात मॉडल दुनिया ने देखा और उसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात नए आयाम स्थापित कर रहा है। लखनऊ में साउथ सिटी स्थित टेंट हाउस में आग लगी, जिसके चलते लाखों का नुकसान हुआ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को 10 दिनों के रिमांड पर एनआईए को सौंपा गया। लखनऊ के मंडियाव थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली और फिर खरीदारी को लेकर बताई जा रही है ये पूरी बात। पीड़ित पक्ष का कहना है 6 लोग बाइक पर सवार होकर आए, उन्होंने हमला किया। पुलिस फिलहाल मौके पर तैनात। बिहार के औरंगाबाद में जमीन विवाद सुलझाने गई टीम से ग्रामीणों ने मारपीट की और 11 पुलिस वाले इस दौरान घायल हुए। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई। उत्तराखंड के मदरसों में लागू किया जाएगा ड्रेस कोड। पहले चरण में 7 मदरसे बनाए जाएंगे मॉडर्न। देश का पहला राज्य जहां मदरसों में सर्व समाज के बच्चों को भी किया जाएगा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाने में मुकदमों के 500 से अधिक जब्त और सड़क दुर्घटना में क्षतिग्रस्त वाहनों की भीषण आग लगने की वजह से यहां पर तस्वीर काफी गंभीर हुई। मुंबई में तेंदुए का आतंक जारी। कल्याण पूर्व के चिंचपाड़ा रोड पर श्रीराम अनुग्रह टावर में घुसा तेंदुआ, हमले में 2 लोग घायल। राजस्थान आईएएस एसोसिएशन ने मंत्री रमेश मीना की फटकार पर नाराजगी जताई। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने सीएम ने इसकी शिकायत की। रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सेना बड़े पैमाने पर एंटी ड्रोन प्रणाली खरीदेगी और इसके लिए सेना के 63 एकीकृत ड्रोन पहचान कर लिए गए हैं। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंक प्रायोजित देश माना है। इसके साथ ही रूस को आतंकवाद के रूप में एक राज्य प्रायोजक के रूप में नामित किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा पर हमला बोला। कहा, भाजपा पहले डराती है फिर हिंसा करती है। देश में नफरत, हिंसा और डर फैलाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संचालन समिति की पहली बैठक बुलाई। 4 दिसंबर को संचालन समिति की यह बैठक होगी। शीतकालीन सत्र की रणनीति पर होगा विचार। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा। यूपी में 7 दिन तक रहेंगे राहुल गांधी और मथुरा से सहारनपुर तक इसके लिए रूट भी तैयार किया गया। कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद संग्राम जारी और इसके चलते कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट में भिड़ने की तैयारी में शिंदे सरकार। महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि विपक्षी एकता बनाने की कोशिश जारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को योजनाओं का लाभ हर हाल में मिलना चाहिए। कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होना चाहिए।
बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र में कम आने पर सवाल खड़े हुए सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही अब्दुल करीम चौधरी ने इस पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शपथ ली। पिछले साल बंगाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा में केंद्रीय टीम में शामिल थे। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर हमला बोला है। कहा, सूबे में पत्थर का कारोबार, इस पर ईडी का शिकंजा कसा तो कोयला चोरी बढ़ गई। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने दावा किया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यहां अपने पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं। टाडा कोर्ट ने अलगाववादी नेता यासिन मलिक के खिलाफ जारी किया है नया वारंट। यासिन मलिक पर वायुसेना के अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना समेत 4 लोगों की हत्या में शामिल होने का आरोप है। राम जन्मभूमि का परिसर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। अधिग्रहण क्षेत्र 67.70 एकड़ से बढ़कर 108 एकड़ करने पर विचार हो रहा है। महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन ने देश के सभी औषधि नियंत्रक अधिकारियों से इंजेक्शन ऑरोफर एफसीएम के इस खास बैच का इस्तेमाल करने को रोका है। देश के 6 राज्यों में बढ़ा है खसरा। 5 साल तक के बच्चों को टीके के 3 डोज। देश में बच्चों को खसरे के टीके दिए जा रहे हैं। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ। जयपुर में मुरलीपुरा में स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने राह चलती महिला को गोली मारी। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बिजनौर में कॉलेज के सामने बीबीए के छात्र की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की। बिहार के खड़िया में इंसानियत हुई शर्मसार। 3 साल की बच्ची से रेप। गंभीर हालत में बच्ची को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में लव जिहाद के आरोपी को भीड़ ने जमकर पीटा। नाम बदलकर हिंदू लड़की को फंसाने की कर रहा था कोशिश। लखीसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी, जहां एसआईटी टीम ने हत्याकांड मामले का खुलासा किया। हावड़ा ब्रिज पर एक शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। ब्रिज पर चढ़कर 45 मिनट तक हंगामा किया। मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है शख्स। बिहार के गया में कई दुकानों में आग। टिकरी में पंचानपुर बाजार में आग लगी और कई दुकानें जलकर राख। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बेटी के जन्मदिन पर पिता ने अनोखे अंदाज में मनाई खुशी, जहां पर उसने खिलाए मुफ्त गोलगप्पे। प्रवासी पक्षियों के लिए बरेली की लिलौर झील का पानी हो रहा है जहरीला। मुंबई के ठाणे जिले में फूड ड्रग एसोसिएशन की बड़ी कार्रवाई। एफडीए के अधिकारियों ने करीब 1 करोड़ रुपए का प्रतिबंधित गुटखा किया जब्त। नासिक में शहर में घूमता दिखा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा। बिहार के रोहतास में बेड से बंदकर मरीज का किया जा रहा इलाज। मरीजों के साथ अस्पताल में होती है अमानवीयता। यहाँ वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। दिल्ली के मयूर विहार एक्सटेंशन के पास अक्षरधाम रोड पर एक कार में लगी भीषण आग। अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में आग लगी। यूपी के सीतापुर में बच्चा गोद लेने को लेकर बवाल हो गया। लोगों के समूह ने पुलिस की गाड़ियों पर पथराव किया। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज। ओडिशा में जाजपुर के धनेश्वर के पास आगजनी की घटना। कबाड़ के गोदाम में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आंध्र प्रदेश में सत्यसाई जिले में दर्दनाक हादसा। लॉरी, ऑटो और एक बाइक में टक्कर हुई और हादसे में 2 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम जिले में पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत। दिल का दौरा पड़ने से जान गई। डीएम के आदेश पर गोपालगंज के सीओ पर एक्शन। अवैध वसूली के आरोप में हिरासत में लिया गया। मेघालय में री भोई जिले के फ्रंटल प्रेशर ग्रुप ने जिले के अलग अलग हिस्सों में घटना के खिलाफ दिखाए काले झंडे। गाड़ियों पर काला झंडा लगाकर जताया विरोध। मेघालय में टीएमसी ने गोलीकांड के पीड़ितों के परिजनों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे को मंजूरी दी। गोलीकांड में 6 लोगों की गई थी जान।